شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ پانی کا بہاؤ 2,19,000 سے کم ہو کر 2,17,660 کیوسک ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زین علی سے۔ زین، دریائے راوی کی اب کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل عمران، اب جو دریائے راوی میں پانی کی سطح ہے اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جسڑ کے مقام پر جہاں سے انڈیا سے پانی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے دریائے راوی میں، اس مقام پر پہلے جو 1,00,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزرا تھا، اب اس کی تعداد اس میں بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور 5,000 کیوسک کم ہوا ہے، جس کے بعد اب وہاں پر جو ہے وہ 95,000 کیوسک پانی کی جو سطح ہے، بہاؤ ہے، وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جسڑ کے مقام کے بعد جو اہم مقام آتا ہے راوی کا، وہ شادرہ کا مقام ہے، اور یہاں پر بھی جسڑ کے بعد پانی کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ شادرہ کے مقام پر پہلے 2,19,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا تھا، اب اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور 2,17,000 جو ہے وہ اب کیوسک ریلا جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مقام آتا ہے وہ بلوکی کا ہے، جس میں جو ہے وہ اس کی جو تعداد ہے وہ جوں کی توں ہے، وہ برقرار ہے وہاں پر پانی کی سطح، لیکن یہ جو ہے وہ امکانات ہیں کہ جیسے جسڑ کے بعد شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آئی، تو اسی طریقے سے اب بلوکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں کمی آنے کے جو ہے کہ امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے اطراف اس دریائے راوی کے اطراف میں موجود جو بستیاں ہیں، آبادی ہے، شہری آبادیاں ہیں، ان میں سے بھی جو ہے وہ شہریوں کو اس وقت ریسکیو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تقریباً اب تک 197 افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے زین، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت شہر میں کن کن علاقوں میں پانی موجود ہے اس وقت؟ جی بالکل، اگر بات کرتا چلوں تو دریائے راوی کے اطراف میں جو ہے وہ کئی علاقے آتے ہیں، جس میں T1 T2 شفیق آباد اور اس کے بعد تھیم پارک، مانگا، چونگ، ان میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن جیسے ہی شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی ابھی جو ہے پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ان تمام مقامات پر جب 2,19,000 20,000 کو ٹچ کیا تھا شادرہ کے مقام پر، تو جب ریلا آگے جیسے جیسے گزر رہا تھا تو ساتھ ہی ان آبادیوں میں پانی کا جو بہاؤ ہے، پانی کا جو داخلہ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر پانی کی سطح کم ہونے کے ساتھ اب وہاں پر بھی پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ پہلے تیز رفتاری کے ساتھ پانی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اور شہری آبادیوں میں داخل ہو رہا تھا، اب اسی طریقے سے جو ہے وہ پانی کی سطح بھی اب وہاں پر بھی کم ہونا شروع تو زین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے یا ابھی بھی خطرات لاحق ہیں؟ ابھی بھی اگر میں بات کرتا چلوں تو اس کو اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہی واضح کیا جا رہا ہے، یہی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے، کیونکہ اہم مقام جو ہے وہ جسڑ کا ہے، جس مقام سے جو پانی ہے دریائے راوی کا جو پانی ہے وہ داخل ہوتا ہے، وہاں پر کمی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمی اب آئندہ چند گھنٹوں میں اپنے جو ہے وہ اثرات دوسرے مقامات پر بھی دکھا رہی ہے، جیسے شادرہ میں دیکھا گیا، اس کے بعد بلوکی، اور اس کے بعد جو اطراف میں جو پانی گیا تھا ان میں کمی دیکھنے میں آئی۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی جسڑ کے مقام سے پانی کی سطح کم ہوگی تو دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دریائے راوی میں جو پانی کی سطح ہے، سیلابی ریلا ہے، اس میں کمی دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور یہی جو ہے وہ نوید جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ سنائی گئی ہے، جبکہ جو دوسرے مقامات ہیں اطراف میں جو جتنے بھی علاقے لگتے ہیں، شہری آبادیاں لگتی ہیں دریائے راوی کے، وہاں پر بھی جو ہے وہ جو پانی شہری آبادیوں میں داخل ہوا تھا ان میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چونگ کا علاقہ جس میں ابھی جو ہے وہ تقریباً 15 کے قریب لوگ جو ہے وہ پھنسے تھے، ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا، گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے، ان کو ریسکیو کیا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، لوگوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں سچویشن نارمل ہو سکتی ہے۔ دریائے راوی پر موجود ہمارے نمائندے زین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ زین۔
नाज़रीन, भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। चिनौट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 7,30,900 क्यूसिक तक पहुंच गया है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। चिनौट के 100 देहात खाली करा लिए गए। कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी। दरिया चनाब में पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचा तो बंद तोड़ देंगे। बंद तोड़ने से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर दिया। ब्रिज अहम है, लेकिन ब्रिज से ज़्यादा अहम शहर के लोग हैं। उम्मीद है कि बंद तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। पानी इसी पुल के नीचे से गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर सफील्ला गोंदल की जानिब से कहा गया, दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड कानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड मुराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफे पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज पानी की सतह 1,751 फुट तक पहुंचने पर खोले गए हैं। स्पिलवेज पानी की सतह 1,746 फुट तक पहुंचने तक खुले रहेंगे, जबकि कोरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। एनडीएमए की जानिब से ये बताया गया, रावल डैम में पानी की सतह में इजाफे पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज पानी की सतह 1,751 फुट तक पहुंचने पर खोले गए हैं। स्पिलवेज पानी की सतह 1,746 फुट तक पहुंचने तक खुले रहेंगे। ननकाना साहिब में हेड बलोकी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड बलोकी में पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक शादरा से बड़ा रेला हेड बलोकी की जानिब बढ़ रहा है। हेड बलोकी पर 2 लाख क्यूसिक पानी मुतवक्के है। दरियाई बेल्ट के 139 देहात मुतासर हो सकते हैं। मुतासरा देहात से लोगों को फौरी नकल मकानी की हिदायत भी की गई है। ननकाना साहिब में हेड बलोकी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड बलोकी में पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गई। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पुरअज़म है। इंतखाबात और इंतज़ामात मुकम्मल हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सिंध के तमाम अजलास में मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। तमाम बिराजों के दरवाजे बेहतर हालत में हैं। पानी का रेला बड़ा होने की सूरत में कच्चे का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। भारत ने अचानक पानी छोड़ा, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आप भी सुनिए। जितने भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तीनों बैराजेस की वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काम भी हो रहा है। और फिर जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने भी अपना पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि लोगों को किस तरह, जो कच्चे का इलाका है हमारा, कि जब 6-7 लाख तक पानी आता है तो फिर उनको रिलीफ कैंप्स में या जहाँ जहाँ उनके इंतजामात हैं तो उन लोगों को शिफ्टिंग करनी है। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें या फिर जो जिस तरह इंडिया ने ये मज़मूम हरकतें की हैं कि पहले भी पानी अचानक से छोड़ा, जिसकी वजह से भी पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ है। नाजरीन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी, जबकि पंजाब में 30 और 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, नारावाल, मंडी, बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सबात, मानसरा, पेशावर, नौशहरा, बन्नू में भी बारिश की पेशगोई की गई। मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर में बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यह कहना है कि दुनिया भर के ममालिक ने गवर्नेंस बेहतर बनाने के छोटे मनसूबे तश्कील दिए हैं। ज़्यादा सूबे बनाने से इंसाफ का हुसूल आसान होगा, इंतज़ामी अखराजात में कमी आएगी। ज़्यादा सूबे बनाना पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर काम होगा। पाकिस्तान में पासमंदगी की बड़ी वजह नाक़िस हुक्मरानी है। इसकी अहम वजह सूबों का गैर मुतनासिब और बेतहाशा साइज़ है। उन्होंने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए मज़ीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 78 साला खुद मुख्तारी का सफर मुकम्मल कर चुका है। बदकिस्मती से हमारी रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी अवामी फलाह बहबूद की अदायगी में नाकाम रही है। पाकिस्तान हर बैनुल-अक़वामी इशारिये में इंतहाई निचले दर्जे पर खड़ा है। 167 में से 140वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 ममालिक में 168 नंबर पर है। कानून की हुक्मरानी में हम 142 ममालिक में 129वें नंबर पर हैं। नाकिस हुक्मरानी की अहम वजह सूबों का गैर मुतनासिब और बेतहाशा साइज है। 1947 में पाकिस्तान के 4 सूबे जबकि भारत की 9 रियासतें और 565 शाही रियासतें थीं। आज भारत में 28 रियासतें और 9 टेरिटरीज हैं, जबकि हमारे आज भी वही 4 सूबे हैं। अमेरिका की आजादी के वक्त आबादी 25 लाख थी और 13 रियासतें थीं। इस वक्त अमेरिका की 50 रियासतें बन चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है जिसमें यूएन के 167 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान उसमें अनफॉर्चुनेटली 140th नंबर पे है। हमसे नीचे वो मुल्क हैं जहाँ पे या खाना जंगी चल रही है या कहत पड़ा हुआ है। नॉर्मल कंट्रीज नहीं हैं जो हमसे नीचे हैं। रूल ऑफ लॉ है। 142 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं और हम इस पे 129th नंबर पे हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि मौजूदा सूबों का इंतजामी बुनियाद पर डिवीजन की सतह पर नए सूबों में तकसीम किया जाए। पंजाब में 10 सूबे, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7, बलोचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में विफाक कायम रहेगा, यानी कुल 33 विफाकी इकाइयां होंगी। हम ये कह रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी डिवीजन तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन हैं। खैबर पख्तूनख्वा 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन हैं तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का कहना था कि मौजूदा वसाइल में रहते हुए नए सूबे बनाने की तजवीज दी गई है। ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। अदालती निजाम ठीक बनाने से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। हजारों लाखों पेंडिंग केसेस, हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है। मियां आमिर महमूद का ये भी कहना था कि तासुर दिया जाता है कि सूबे बनाने से अखराजात में इजाफा होगा। भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर वसाइल पर तकसीम किया गया। 10 साल बाद दोनों सूबों की आमदन 2 गुना से ज्यादा हो गई। भारत में सूबे बनाने से उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ। बहुत ज्यादा जो बात होती है कि हमारे सूबे बनेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ जाएंगे, उसकी भी डिटेल मेरे पास है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो 10 साल में 2024-5 में GSDP बढ़ के डबल से ज़्यादा, ये तो है जो इंडिया कर रहा है। हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता उनकी तारीफ करने के लिए, बट दिस इज द सिस्टम दे आर फॉलोइंग। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नौजवानों को सपोर्ट करे। सिस्टम हमारी यूथ को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो भी आप में से कुछ आगे निकलता है वो इस सिस्टम को डिफीट करता है पहले, फिर आगे निकलता है और फिर कामयाब होता है। तो हमें वो सिस्टम बनाना है जो हमारी यूथ को सपोर्ट करे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि वो आवाम में नए सूबों के हवाले से आगाही देना चाहते हैं। ये मुहिम किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है। नए सूबे मुल्क में बड़ी तब्दीली होगी। नए सूबों के क्याम से मिडिल क्लास से लीडरशिप आएगी। इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। अवामी फलाह के काम होंगे। मईशत मजबूत और इंतजामी अखराजात में वाज़े कमी होगी।